ये प्रोग्राम करते हुए इस वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। कहा This is the extreme of humanity. Separated by borders, united by heart. 19-year-old Aisha Rashan from Pakistan has a brand new heart after transplant. An Indian heart is actually ticking in her. एक खातून जिसके पास पैसे नहीं है, उसकी बेटी को अगर भारतीय डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी महंगी तरीन सर्जरी जो है वो मुफ्त फराहम कर सकते हैं। भारत ने तो पाकिस्तान को कोविड के जमाने में मुफ्त वैक्सीन तक की ऑफर की थी। हम पाकिस्तानी भी ऐसा कुछ काम करें जिससे दूसरे लोग हमसे मुतासिर होकर इस्लाम में आए। भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो। Hi friends, welcome back to Prime News. Doctors at MGM Healthcare, Chennai have successfully performed a heart transplant on a teenager from Pakistan's Karachi. 19-year-old Aisha Rashid fell ill in 2019 after a heart problem in Karachi. She came to Chennai for medical help. Even after the first treatment, her health did not improve, so she returned to Chennai in June 2023 for a heart transplant. Dr. K.R. Balkrishnan, the chief of heart transplant at MGM Healthcare, became a ray of hope for Aisha and her family. He not only understood Aisha's medical problems, but also her financial struggles and worked with Aishwaryam, a healthcare trust in Chennai, to fund her treatment. The doctor mentioned that Aisha had only her mother and was facing financial difficulties, so he, along with Aishwaryam Trust and some other heart patients, came forward to help her. Aisha expressed her gratitude, thanking the Indian government and her doctors, and expressed her wish to return to India in the future. Let's hear Pakistan's reaction to this generous Indian gesture. Thank you. भारत एक पाकिस्तान की 19 साला लड़की के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना सिर्फ पूरी मदद फराहम करता है बल्कि A to Z उसकी सारी फंडिंग भारत के डॉक्टर्स, भारत के डोनर्स फराहम करते हैं। So her heart failure worsened and she required repeated hospitalization. And in that country, managing patients with artificial heart pumps is not easy because the equipment required to monitor now there was not there, and they had no money. So she, half the time she was not conscious. She had bad the pump. So we had to do something to help. With great difficulty, she got a visa. She came here, she had absolutely no money. She's a single mother. So we had to take care of all the expenses. So Aishwarya Trust came forward very generously to help. I could contribute whatever I could from my own finances. And a few of the patients we treated were very generous. So they paid for, and eventually we got a donor heart from Delhi, which nobody else wanted. Lucky. And she underwent a transplant a couple of months ago. That heart actually was quite big for her because it was from a much older donor. And her chest had to be kept open for almost 10 days. We couldn't close the chest. And now she's completely recovered and she's ready to go home. अब इस आप फर्क को देखिए कि क्या पाकिस्तानी जो मुंह खोल खोल के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कभी ये सोचते हैं कि भारत इनफैक्ट क्या है। अगर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कश्मीर की गर्दान ना हो, भारत के खिलाफ 1947 से लेके अब तक जो टू नेशन थ्योरी के नतीजे में पैदा होने वाला हिंदू नफरत का कार्ड ना हो, तो भारत पाकिस्तान के लिए कितना मददगार हो सकता है। अगर एक आम शहरी, एक खातून जिसके पास पैसे नहीं है, उसकी बेटी को अगर भारतीय डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी महंगी तरीन सर्जरी जो है वो मुफ्त फराहम कर सकते हैं। भारत ने तो पाकिस्तान को कोविड के जमाने में मुफ्त वैक्सीन तक की ऑफर की थी। ये है भारत अपने तमाम तर पॉलिटिकल या रीजनल इश्यूज के बावजूद अपने हमसायों के साथ जिस तरह वो जुड़ा हुआ है। जज्बाती बात थी मेरे लिए आज सुबह। मैं उसको फॉलो अप तो कर रहा था स्टोरी को, लेकिन आज मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मेरे हीरो हैं बालाकृष्ण और डॉक्टर राव। मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दी। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनका इंटरव्यू सुनना चाहिए। और डॉक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूँ जिस तरह मेरी बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह है। इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी खबरें चाहिए, मेरी जाती राय के अंदर। तो हम सारा टाइम पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस करते रहते हैं, भारत ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, अमेरिका ये कर रहा है, लेकिन असल चीज़ ये चीज़ है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और ये जो चेन्नई का हॉस्पिटल है, डेफिनेटली इन्होंने बड़ी पाकिस्तानी बेटी की जान बचा के
डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा काम किया, ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू हिम। हमारी तमाम जो है ना दुआएं उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी, दिल भी दिया, मेहनत भी की, इनको रखा भी होगा। कितना बड़ा एक हम अपनी जुबान में इसको बोलते हैं सदका जारिया करना। मतलब यू डू इट फॉर ह्यूमैनिटी, यू डू इट फॉर टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आप उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए कर रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स। सो वो जो डॉक्टर साहब हैं या जो बोर्ड है वो तो इन्होंने तो भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए किया है ना, और दे लुक्ड फॉर इट कि आए इस बच्ची को हम ख्याल करें, इसका हम करें। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म है उसका पाकिस्तानियों को भी फायदा होना चाहिए, और जितनी ज्यादा ईज ऑफ ट्रैवल होगी, क्योंकि हमें लैंग्वेज का मसला नहीं है। सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्टर्स दिया है हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल। हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। तालीम तालीम तालीम, जिसकी वजह कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत, तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है। तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए। सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान। ठीक है, यानी उस इंडियन ने पूरे इंसानियत की जान बचाई है। हाँ जी। पहली बात तो ये, अगर तो ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज है, और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मजहब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सबको इंसान बनाया है, तो हम कोई अच्छा काम करेंगे तो ही कोई दूसरा आपसे मुतासिर होगा। जैसे आपने ये बात की, आप देखें अब इंडियन से कितना मुतासिर हो रहे हैं। हम पाकिस्तानी भी ऐसा कुछ काम करें जिससे दूसरे लोग हमसे मुतासिर होकर इस्लाम में आए।